A very good morning to all of you. This is class 7 geography lesson 7 part 2. As we have already discussed about different types of tides, ocean currents and water waves. Now in this module we'll discuss about that how these ocean currents are caused. So there are basically many reasons which I have mentioned over here, that is wind, density difference of water, temperature, salinity as well as gravity. All these things we'll discuss over here, along with the effects which are occurring due to ocean currents, along with the tsunami, preparation of tsunami, and all these are the topics we'll discuss in this module. So, how are ocean currents caused? Basically, they are caused because of density difference of sea water. ध्यान रखिएगा ocean currents क्यों बनते हैं? Just because of density difference, as the difference is occurring due to temperature and salinity. Salinity means the amount of salt present in water is called as salinity. प्रिवेलिंग विंड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली ओशन करेंट्स विंड्स की वजह से भी फॉर्म होते हैं. एज दीज विंड्स इफ ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो कंटिन्यूसली विल मूव, द वाटर विल मूव इन द सेम डायरेक्शन इन विच विंड इज़ प्रिवेलिंग. जिस साइड में विंड मूव कर रही होगी उसी साइड को सारा वाटर ट्रैक हो जाता है, जस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. This also leads to the formation of ocean currents. Beta, this is a word diagram, word map which is telling कि हवा the movement of ocean currents. बेटा इसमें जितना भी ये रेड कलर का मूवमेंट आपको दिख रहा है, that is called as warm currents. The blue one is called as cold current. Like major places are there like North Pacific Drift, Alaska current, California current, and many more are there. You can write the names which is given in the after this picture. So they told कि ocean currents are the streams of water which are moving in a particular direction. Means ocean currents हमेशा एक particular direction की तरफ move करते हैं on the surface of sea. Salinity is the amount of salt present in ocean water. Then drift is movement of ocean currents or moving currents in ocean water is called as drift. Means जो water का movement होता है slowly जिसकी वजह से currents का formation होता है, this is called as drift. Along with that, one more important thing is कि why which thing leads to the formation of ocean currents या new currents, that is rotation of earth. Rotation of earth on its axis also leads to the formation of new currents. Now we will discuss what are the effects of ocean currents. Ocean currents are basically due to agriculture, climate, and other economic activity. Economic activities means the activities through which people are earning money in coastal areas. So they told that these are the reasons, effects which are coming due to ocean currents. फर्स्ट इज़ वार्म करेंट्स. वार्म करेंट्स की वजह से क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जैसे कि आपको कोरिशो करंट बता रहे हैं जो पैसिफिक ओशन और गल्फ स्ट्रीम में और अटलांटिक ओशन में बनता है. इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है एज एंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. अनदर वन इज़ वार्म करेंट्स. वार्म करेंट्स कीप द पोर्ट मीन्स जो पोर्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा जो है यहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं, तो पोर्ट्स पे जो पोलर रीजन है वो फ्री रहता है आइस से, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मतलब आइस नहीं है टाइम रहती है विंटर्स के टाइम में. एग्जाम्पल में आपको बताया गया कोस्ट ऑफ नॉर्वे आर्टिक सर्कल में वो फ्री रहती है आइस से विंटर सीजन में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्म करेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और जबकि जो कोल्ड लेब्राडोर करेंट्स होते हैं वो हमेशा फ्रोज़न रहते हैं, मतलब वहाँ का एरिया परमानेंट ठंडा रहता है. द करेंट्स इवन द इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ऑब्वियसली रेनफॉल्स भी काफ़ी इफेक्ट करती है. जो कंट्री में ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ का करेंट्स ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे ओशन करेंट ज़्यादा बनेंगे. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली करेंट्स का फॉर्मेशन ज़रूर होगा. सो दे टोल्ड कि कंट्रीज आर गेटिंग इन्फ्लुएंस ड्यू टू वार्म करेंट्स ऑल्सो. एज दे सी मोर रेनफॉल सो विंड विल बी मोर विच इज़ पासिंग ओवर एंड एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, जिसकी वजह से अच्छा खासा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड ड्यू टू विच दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करेंट्स. Like Ireland and Britain receive high rainfall because of this reason. Along with that, one important desert is there, Atacama Desert, which always remain dry just because की wind जो pass on होती है वो cold winds होती है, वो उनको मतलब moisture इतना absorb नहीं कर पाती, just because of that it remains hot.
So that is why they are called as hot deserts in the coast. And the another is mixing of warm and cold current, जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों करंट्स मिलते हैं. दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैंक्टन. आप कहोगे प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं स्मॉल सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिश को फूड प्रोवाइड करते हैं. छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो खाना बनते हैं फिश का. ये सपोर्ट करते हैं फिश को ताकि आराम से वो सर्वाइव कर सके ग्राउंड पे. ग्राउंडिंग ऑफ वर्ड्स मतलब फिश एग्जिस्ट करेंगे, उसके लिए एग्जिस्ट करने के लिए फिशेस क्या खाती है? प्लैंक्टन्स को खाती हैं. मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, मतलब कोहरा होता रहता है, जिसकी वजह से ये शिप्स के लिए विजिबिलिटी होना बहुत कम हो जाता है. जितना फॉग होगा तो उसको इतना जो हमारे शिप्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू सी द क्लियर विजन, ड्यू टू विच इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंजरस सिचुएशंस. सो दे टोल्ड कि दीज आर द रीजन्स लाइक न्यू फाउंडलैंड जो है वार्म बर्फ में मिलता है जाके, जहाँ पे उसको चोट मीन्स गर्म और ठंडे दोनों करंट मिलते हैं. देन द करंट्स इन्फ्लुएंस नेविगेशन. ऑब्वियसली सेलर्स जब एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो करंट्स का फॉर्मेशन की वजह से जो है ये करंट्स की वजह से जो है मूवमेंट में डिफरेंस आता है. एज यू नो कि ये शिप कैन श्योरली गो फास्टर टू सेव टाइम एंड फ्यूल, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी शिप्स होते हैं वो करंट या जिधर का मूवमेंट एयर विंड का होता है उसकी तरफ इजीली चले जाते हैं ताकि वो टाइम और फ्यूल दोनों बचा सकें. एंड द वेरी लास्ट इज़ कि मेल्टिंग की वजह से आइसबर्ग्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है शिप्स को मूव करना, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि आगे एकदम पहाड़ जैसे निकल आए और शिप्स को कैसे बचाएं. तो इसमें भी डिफ़िकल्टी थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ कि देयर इज़ अ हैवॉक ऑफ सुनामी. सो उन्होंने बताया कि ये सुनामी होता है क्यों. सुनामीज आर कॉज ड्यू टू सेस्मिक सी वेव, जो कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है सी वेव का, इसकी वजह से होती हैं. ये अंडर वाटर होते हैं. इट वॉज लेफ्ट लाइक पीपल आर डेड ओवर देयर. बहुत सालों से वहाँ पे हैं. एपिसेंट वो भी December 2004 में हुआ था जहाँ पे अर्थक्वेक आया था. उसका एपिसेंटर था अबाउट 237 किलोमीटर्स. बांद्रा एच, सुमित्रा, ये सारे नेम्स से. और हमने पता कैसे लगाया था? रिचर स्केल से. अप्रॉक्स 3000 पीपल उसमें तमिलनाडु में और पांडिचेरी आंध्र प्रदेश केरला में डेथ हुई थी. बेसिकली सुनामी होती क्या? सुनामी एक टाइप की वेव होती है जो कंटिन्यूसली बॉडी को जनरेट करती है ताकि जो है बॉडी एक्टिव हो जाए और डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. ये वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर का कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से सुनामी आती है. सुनामी क्या होता है? एक ही डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत फास्ट, बहुत ही ज़बरदस्त वाला फास्ट कह सकते हैं, वेव होती है जो डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करती है. अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारे इम्पैक्ट्स ये कॉस्मिक बॉडीज़ का मतलब हो गया आपकी जितनी भी हमारी जो वाटर मतलब जो हमारी हेवनली बॉडीज़ लाइक मेटेरॉइड्स वगैरह, ये जनरेट करती है सुनामीज. सुनामी अटैक कोस्ट लाइन को करती है, कोस्ट लाइन समुद्र के किनारे पर करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ को डैमेज होता है. दिस इज़ वेरी हार्मफुल. व्हाट इज़ एग्जैक्टली सुनामी? सुनामी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव. इसमें उन्होंने कहा जो टाइडल वेव्स या हमारी सेस्मिक वेव्स होती हैं वो टाइड्स का फॉर्मेशन करती हैं. और ये टाइड्स बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, बहुत ही हाई टाइड्स बनाते हैं जो हमारे कोस्ट जो सी कोस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. तो यही लिखा है कि सुनामीज कैन नॉट बी अ सेस्मिक बिकॉज दे कैन ऑल्सो आर नॉट सेस्मिक. कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे बहुत कम होती है. तो ये मेटेरॉइड्स पे इफेक्ट डालती है. देन सुनामी के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं? फर्स्टली कि हमारे स्कूल जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ हम जाते हैं वो सुनामी से थोड़ा सा मतलब जैसे समुद्र के किनारे ना होने चाहिए या ऐसी एरियाज होनी जहाँ पे पानी बहुत जल्दी एंटर ना कर सके, हैज़ार्डस ना हो. टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए? टोपोग्राफी इस एरिया की वो थोड़ा हाई होनी चाहिए. नहीं कि समुद्र के पास में, तो अगर समुद्र के पास भी तो थोड़ा सा उससे लेवल ऊंचा होना चाहिए. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर गर्रा पुल के पास में या गर्रा पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो आसपास के एरियाज़ होते हैं उसमें पानी भर जाता है उनके घरों में. बट अगर आप सिटी की तरफ बढ़ोगे तो आप देखोगे ऐसा है वहाँ पानी नहीं पहुँचता. क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लेवल से थोड़े से ऊँचे हैं, जिसकी वजह से सी कोस्ट जो है रिस्क एरिया बन जाता है. और या फिर रिवर के पास का कोई भी एरिया टोपोग्राफी इफेक्ट करती है. एवैक्यूएशन रूट्स, वो रूट्स जिसकी वजह से स्कूल वगैरह जो है वह उस रूट्स में होने नहीं चाहिए जहाँ पे समुद्र है. इमरजेंसी कम्युनिकेशन क्या होता है कि कभी किसी सिचुएशन में अगर ऐसा कोई फैमिली फंस जाए सुनामी की वजह से तो उनके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि हम अगर ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो हम उस टाइम में स्टेट से कैसे बाहर निकलें, उस जगह को मतलब अपनी जगह से वो अपने बंदे को कैसे बचाएं ताकि ज़्यादा डिज़ास्टर ना हो.
अलॉन्ग विद दैट कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमारे पास फूड का एटलीस्ट स्टॉक होना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं तो हम लोग इजीली फूड वगैरह की वजह से सर्वाइव कर सकें। मतलब हमारे पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि हम कहीं और जाके सर्वाइव कर सकें। देन नेक्स्ट इज़ अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, साइक्लोन है। इसमें हम बेसिक वर्क है हमारा टेली कम्युनिकेशन। अगर हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट ईजिली कर पाएंगे, वो भी वायरलेस मीडियम होना चाहिए बेसिकली। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो है सारे जितने भी ये सिग्नल्स या टावर्स होते हैं वो ब्रेक हो चुके थे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमें कुछ ऐसा अल्टरनेटिव मेथड निकालना चाहिए, जैसा सैटेलाइट हो या कुछ ऐसा मेथड, ताकि इस सिचुएशन में हम अपनी बात कहीं दूसरे तक पहुंचा सकें कम से कम। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी को लोकल मेम्बर्स, कम से कम हमारे लोकल मेम्बर्स भी ऐसे होने चाहिए, अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है तो हम उन्हें बताएं तो तुरंत ही वो मेजरमेंट्स ले सकें हमें बचाने के लिए। ओशन जो है लार्ज वाटर बॉडीज़ है, ये 90% ऑफ द वाटर कवर करती हैं। ओशन कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है। ये इसकी वजह से तीन चीज़ों ओशन की वजह से तीन चीज़ें बनती हैं: वेव, ओशन करेंट्स एंड टाइड्स। वेव्स क्या होती हैं? ये पुश होता है वाटर सरफेस का ड्यू टू वर्टिकल रीजन्स, ठीक है। पीरियोडिकल राइज एंड फॉल टाइड कहलाता है। टाइड्स जो होते हैं सन, मून और अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से होते हैं, जबकि वेव्स हमारी विंड्स की वजह से बनती हैं। ओशन करेंट दो टाइप के होते हैं, वार्म और कोल्ड। ओशन करेंट्स जो है क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ये सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ जो कोस्टल एरियाज़ के पास होते हैं उन्हें अफेक्ट करती है। Then ocean currents help in fishing as well as in navigation. They told कि this warm and old cold currents meet, so planktons grow abundantly. Means वहाँ पे छोटे छोटे जो animals होते हैं जिसपे fish feed करती हैं. So they told where cold and warm ocean currents meet, they form planktons, which is very good for fishing. Warm currents are the ports, the polar region, because in winter season they can survive. Means ice will not be frozen because the temperature over there is high, just because of warm currents. By this we have reached the end of the module, and this chapter is completed. Thanks for watching. God bless you all.